Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is your maths teacher, Mrs. Anjum Wasim. I hope you all are fine. I welcome you all to lecture number 9, Unit 6, Algebra, Mathematics, Class 8. Our today's topics are formula number 2, a minus b whole square, formula number 3, a square minus b square, and a few questions from exercise 6a regarding these two formulas. The first algebraic formula a plus b whole square we have already discussed in lecture number 8. This is the form, or we can say the standard form of the formula number 2, algebraic formula number 2, which is also called the identity number 2. A minus b whole square is equal to a square plus b square minus 2ab. And as we can see that the first term is a, the second term is b, and when we take the whole square of this binomial, it will be expanded like a first term whole square plus second term whole square plus 2 into first term into second term. So this is basically our the first phase of our topic, today's topic, algebraic formula number 2, or also called the identity number 2. And now we are going to discuss a few questions from exercise in the very same manner as we have discussed a few questions regarding algebraic formula number 1, in which the difference between the formula number 1 and formula number 2 is only this sign. Here we are having this minus sign, and here, and this the expansion of this formula number 2, here we have this minus sign. But in formula number 1 it was a plus b whole square, and in the expansion also it was plus 2ab. So this is the basic difference in these two algebraic formulas. So exercise 6a, question number 1, part D, we have to expand it with the help of algebraic formula number 2, 4f minus q whole square. As we can see that this is the form of a minus b whole square. The expression instead of a is 4f, and the expression instead of b is q. So we will write down the formula first, which is a minus b whole square is equal to a square plus b square minus 2ab. And now we will put the value of a is equal to 4f in this formula, and we will put the value of b is equal to q in this formula. कहाँ से ये 4f और q कहाँ से आया? आप देखें यहाँ क्वेश्चन में a की जगह पर 4f है और b की जगह पर q है. तो आप फॉर्मूला लिखें और डायरेक्ट आप देखें फॉर्मूला में a और b के अलावा और कोई चीज नहीं है. So we will just take a from here and put it in the formula wherever we have a, and we will take the value of b from here and we will put it in the formula wherever we have b. So it will be done like this. 4f minus q whole square is equal to, अब आप यहाँ देखें a square है तो instead of a we are having 4f, so it will become 4f whole square. जहाँ लिखना था plus b square तो हमारे पास b की वैल्यू q है, so we will write plus q whole square. और जहाँ वैल्यू आएगी minus 2ab की तो minus 2 as it is. The value of a is 4f and the value of b is q. Now in the next step we will just elaborate and solve these expressions. 4f whole square का solution क्या होगा? 16f square, क्योंकि 4f को 4f से multiply किया, 16f square आंसर. q को q से multiply किया तो q square, minus 2 into 4f into q, ये सब तीनों multiply हो रहे हैं और इन तीनों का आंसर minus 8fq. So this is the expansion. Next question, question 1 part f, in the very same manner, 3n minus 6 whole square. Only the value of a and b is changed. Now the value of a is 3n and the value of b is 6. So we will write down the formula first. It is a minus b whole square is equal to a square plus b square minus 2ab, and the value of a will be substituted as 3n and the value of the b will be substituted as 6.
So putting the values, it will become 3n whole square plus 6 whole square minus 2 into 3n into 6, right? So you can see here it is a square plus b square minus 2ab. You can very easily relate the values with the formula. Now we will solve them, and after solution it will become 3n into 3n will become 9n square, and 6 into 6 will become 36, and minus 2 into 3n into 6 will become minus 36n. So this is the expansion of 3n minus 6 whole square. Next part is part G, which is 5p minus 7 whole square. We will write down the formula. First, a minus b whole square is equal to a square plus b square minus 2ab. And now we will put the values. The value of a is 5p and the value of b is 7. Putting the value in the formula, it will give us 5p whole square plus 7 whole square minus 2 into 5p into 7. You can see a is 5p, b is 7, 5p, 7 and into 2. So after expansion, further solution, it will give us 25p square plus 47 minus 70p. So this is the expansion of 5p minus 7. This is called the expanded form, and this is called the compact form. Next is part H, 60 minus 8 whole square. In the very same manner, we will first write down the formula. A minus b whole square is equal to a square plus b square minus 2ab. And now the value of a is 6d, as we can see over here, and the value of b is 8. We will put both these values in the formula, and it will become 60 minus 8 whole square is equal to, ये हम क्यों लिखते हैं, ये इसकी जगह पे लिखते हैं, ठीक है. फॉर्मूला की दो साइड्स हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड है, फिर एक इक्वालिटी का साइन है और एक राइट हैंड साइड है. सारी सब वैल्यूज फिट इन की जाएंगी, सब वैल्यूज लिखी जाएंगी, यहाँ से शुरू होके यहाँ तक ये तमाम वैल्यूज क्वेश्चन में से देखकर हम यहाँ इस जगह पे लिखते हैं. a is 60, b is 8, a is 60, यहाँ पे b 8 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर 2 माइनस 2 एज इट इज, फॉर्मूला में माइनस 2 है, माइनस 2 को हम चेंज नहीं कर सकते, माइनस 2 हमेशा इसी तरह ही रहेगा. a और b हमारे चेंज होते रहते हैं क्वेश्चन में. a is 60 and b is 8. तो ये तमाम वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो गई. अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे. 6d होल स्क्वायर इज 36d स्क्वायर प्लस 64 माइनस 96d. ये तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में. 2 इंटू 6 इंटू 8, तो इसका आंसर आ गया 96, और d मल्टीप्लाइड बाय d हो गया, तो वो एज इट इज d रहेगा उसके साथ. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इवेलुएट बाय यूजिंग अलजेब्रिक फॉर्मूला, पार्ट बी. और इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इट इज 98 होल स्क्वायर, एंड 98 होल स्क्वायर को हमने इसी अलजेब्रिक फॉर्मूला की मदद से सॉल्व करना है. तो बिकॉज द अलजेब्रिक फॉर्मूला इज ऑफ बायनॉमियल, तो इसलिए हम इसको बायनॉमियल में कन्वर्ट करते हैं. इट इज जस्ट अ मोनोमियल हियर, 98 इज जस्ट अ मोनोमियल. वी आर जस्ट कन्वर्टिंग इट इनटू अ बायनॉमियल by converting it into 100 minus 2. 100 minus 2 is a binomial. There are two terms in it. So 100 minus 2 whole square में अब हमें क्या फायदा हुआ कि a minus b whole square का फॉर्मूला हम algebraic formula अप्लाई कर सकते हैं. So the value of a will become 100 and the value of the b will become 2. We will write down the formula first, and the value of a and b will be substituted in the formula like this. 98 whole square which is equal to 100 minus 2 whole square. ये हम इसको किसी और बाइनोमियल के इक्वल भी बना सकते हैं, बट आसान हमारे लिए ये है कि हम इसे 100 से रिलेट करें. अदरवाइज ये 90 प्लस 8 भी हो सकता था या 200 माइनस समथिंग भी हो सकता था, लेकिन जो कन्वीनियंट है वो ये है कि 100 से रिलेट करें, एक ऐसे नंबर से रिलेट करें जिसमें जीरोस इन्वॉल्व हों, तो ये आसानी से सॉल्व होगा. इसके और भी ऑप्शंस हो सकते हैं. सो 100 माइनस 2 में 100 ए की जगह पे हो गया, प्लस बी इज 2 माइनस 2 इंटू 100 इंटू 2. इस सबको हम सॉल्व कर लेंगे तो इनकी वैल्यूज ये आ जाएंगी. 100 स्क्वायर इज 10,000,
2 square is 4 and 2 into 100 into 2 is minus 400, and at the end the answer will be 9604. So this is part B. Next is algebraic formula number 3, or we can also call it identity number 3. ये भी आप 7th क्लास में इसको स्टडी कर चुके हैं. अब इसके फर्दर एप्लीकेशंस हम सीखेंगे. इसको रिकैप करें. ये फॉर्मूला इस तरह था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी. देखें इसको, a स्क्वायर, a कंप्लीट स्क्वायर है, फिर माइनस के साथ b स्क्वायर, तो ये इक्वल होगा a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी. अगर आप a प्लस बी और a माइनस बी को सिंपली मल्टीप्लाई भी करें, हॉरिजॉन्टली कर लें या वर्टिकली कर लें, you have learned the process of multiplication of binomials. So the product of these two expressions will become equal to this a square minus b square. So again, a very important algebraic formula will be used a lot in the factorization in 9th class and in 10th class and so on. जब भी आप algebra पढ़ेंगे, जितना भी मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, उसमें ये तमाम algebraic formulas, ये तमाम algebraic identities का बहुत extensive use है. So let's see its application. It's not difficult. It's very easy formula. Question number 1 part I से हम start करते हैं. 64 minus 16a square, right? तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या इसके अंदर कुछ कॉमन तो नहीं है टर्म्स. दीज आर टू टर्म्स. क्या इसके अंदर कोई एक्सप्रेशंस कॉमन तो नहीं है? जैसे 64 कैन बी रिटन एज 16 इंटू 4. 16 इंटू 4 जो है वो 64 होता है. तो इसका मतलब है 16 इस 64 के अंदर हिडन है. अगर हम 16 यहाँ से कॉमन लेते हैं तो 4 यहाँ पर बच जाता है. 16 इंटू 4 में से 16 कॉमन ले लें तो 4 यहाँ बच जाता है. और 16 इंटू 1 है ये, अगर 16 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ सिर्फ 1 a स्क्वायर बच जाएगा. तो सबसे पहले तो हम यही करेंगे कि हम 16 जो है ये यहाँ से कॉमन लेंगे. इस तरह ये 16 कॉमन आ गया, और 16 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर 4 बच गया फर्स्ट एक्सप्रेशन, और माइनस यहाँ पे जस्ट 1 है तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है. यहाँ पर a स्क्वायर आ गया एज इट इज. अब आप देखें कि ये जो इनसाइड द ब्रैकेट है टर्म, ये आप इसके साथ अब रिलेट करें फॉर्मूला के साथ. ये एक कंप्लीट स्क्वायर है 4, और a स्क्वायर भी एक कंप्लीट स्क्वायर है. whenever we have two complete squares with a negative sign, minus sign in between, it is a sign that it is for identity number 3, formula number 3, a square minus b square, and we can elaborate it like a plus b into a minus b. So it will become the expansion of this will become this 16 into, we can write it as this 4 can be written as 2 square, and this a square can be written as a whole square. So ऐसा लिखने से हमें क्या फायदा हुआ कि we have identified the value of a and b. a की जगह पर a, जिस तरह ये a स्क्वायर है यहाँ पर फॉर्मूले का लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारे पास वहाँ है 2 स्क्वायर, और b स्क्वायर जो फॉर्मूला का लेफ्ट हैंड साइड है उसकी जगह पर हमारे पास आ गया है a स्क्वायर. सो इट मीन्स अगर हम इसमें से a और b सेपरेट करना चाहें ताकि हम यहाँ पुट कर सकें, तो a है 2 और b है a, तो a प्लस b क्या हो जाएगा 2 प्लस a, और a माइनस b क्या हो जाएगा 2 माइनस a. सो वी विल राइट इट लाइक 16 इंटू 2 प्लस a इंटू 2 माइनस a. सो इन दिस वे we elaborate or we expand identity number 3. इसको हम और क्वेश्चन से भी समझते हैं. Let's say J पार्ट में देखें, इसमें भी 16 इंटू 9 जो है वो 144 के इक्वल होता है, और 16 इंटू 1 यहाँ पे इसका मतलब है इन दोनों एक्सप्रेशंस में से भी पहले हम कॉमन 16 ले सकते हैं. सो पहले मैं 16 कॉमन ले रही हूँ. तो 16 इज कॉमन, तो इनसाइड द ब्रैकेट वी आर लेफ्ट विद 9. 16 इंटू 9 144 है, तो
आप वापस देखें, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वापस 144 आएगा, और 16 को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो 16 ए स्क्वायर भी आ जाएगा. सो 9 माइनस ए स्क्वायर. इनफैक्ट हमें 9 माइनस ए स्क्वायर पर ये फॉर्मूला फिट करना है, क्योंकि यहीं पर हो सकता है ये फिट. इट इज अ कंप्लीट स्क्वायर, इट इज अ कंप्लीट स्क्वायर, एंड इन बिटवीन वी हैव अ माइनस साइन. अब हमें ये देखना है कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, राइट. सो इसके लिए हम जरूरी है कि हम इसको पहले होल स्क्वायर्स की फॉर्म में लिखें. So 9 is a whole square of 3 and a square is a whole square of a. So we have got the value of a and b. It is 3 and a. So first we will write it as 3 plus a, then we will write as 3 minus a. और जो 16 हमने कॉमन लिया था वो थ्रू आउट हर टर्म में उसी तरह साथ साथ चलता रहेगा एज अ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट की फॉर्म में ये मल्टीप्लाई हो रहा है 16 इसके साथ. ये तीन टर्म्स हमारे पास, आप कह सकते हैं कि तीन फैक्टर्स की तरह से हैं. These are the three factors. So the expanded form of this is 16 into 3 plus a into 3 minus a. इसी का एक और पार्ट देखते हैं. अब ऐसा पार्ट है जिसमें कॉमन नहीं होगा. 25 माइनस 81 बी स्क्वायर. अब आप देखें कि अगर आप 5 कॉमन लें, 3 लें, 9 लें, कुछ कोई भी ऑप्शन आप सोचें कि इसमें क्या कॉमन हो सकता है, सो यू कैन सी कि कुछ भी कॉमन नहीं है. सो इसको हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. इससे पहले के दोनों पार्ट्स में हम क्या करते रहे हैं, हम पहले कॉमन उसमें से सॉर्ट आउट करते रहे. अब कॉमन नहीं है तो हम डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे इसको. सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ए और बी क्या फॉर्म्स बन रही हैं हमारे पास. 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, और 81 बी स्क्वायर किसका स्क्वायर है, 9 बी का. जैसे ही हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं उसी वक्त हमें ए और बी की वैल्यू पता चल जाती है. ए इज 5 एंड बी इज 9b. सो वी विल राइट इट एज 5 प्लस 9b एंड 5 माइनस 9b, क्योंकि हमें इसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी एक दफा प्लस करके लिखना है और एक दफा माइनस करके लिखना है. तो इस तरह हम इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बना लेते हैं. और इसी तरह एल पार्ट इसमें देखिए 9a स्क्वायर माइनस 36 है, और फॉर्मूला लिखा हमने, ये कॉमन आ गया. यहाँ पर एक स्टेप आप और करेंगे. यहाँ पर भी कॉमन लेने के अलावा एक ऑप्शन और हमारे पास ये है कि हम अगर पहले कॉमन नहीं लेते तो हम लास्ट में जाकर कॉमन ले सकते हैं. तो यहाँ एक स्टेप आप और करेंगे कि यहाँ से 3 कॉमन लेंगे और यहाँ से भी 3 कॉमन लेंगे. जब आप यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस 2, और यहाँ से जब 3 कॉमन लेंगे इस ब्रैकेट में से तो ये आ जाएगा a माइनस 2, और 2 3 बाहर होंगे आपके, तो वो बन जाएगा 9 इंटू ए प्लस 2 इंटू ए माइनस 2. तो इस स्टेप के अंदर एक आप एडिशन कर लीजिएगा. इसका आंसर फाइनल बन जाएगा, इस ब्रैकेट में से 3 कॉमन आ जाएगा, इस ब्रैकेट में से भी 3 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर यहाँ से a प्लस 2 बच जाएगा, यहाँ से भी a माइनस 2 बच जाएगा, और जो 3 और 3 आपने बाहर कॉमन लिए हैं वो 9 बन जाएंगे. सो 9 इंटू ए प्लस 2 इंटू ए माइनस 2, ये इसका फाइनल आंसर होगा. ये इसका जो इस वक्त लिखा हुआ है ये इसका फाइनल आंसर नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का m पार्ट है. 49d स्क्वायर माइनस 81 में हमने फॉर्मूला लिखा, और अब हम इसको होल स्क्वायर्स की फॉर्म में लिखेंगे. ये 49d स्क्वायर 7d का होल स्क्वायर है और 81 9 का होल स्क्वायर है. सो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ a एंड b. a is 7d and b is 9. So 7d plus 9 and 7d minus 9. These are the two expanded forms. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखेंगे इवैल्यूएट बाय यूजिंग द अलजेब्रिक फॉर्मूला. जिन क्वेश्चंस पे इसकी एप्लीकेशन है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. द फर्स्ट इज पार्ट सी. 301 into 299. We can write this 301 as 301 plus 300 plus 1, and we can write this 299 as 300 minus 1. So this is a plus b and this is a minus b. So identity number 3 जो है या algebraic formula number 3 जो है वो हम किस तरह इन्वॉल्व कर रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि हम बाउंड हैं, हमें algebraic formula से ही इसको सॉल्व करना है. अदरवाइज तो ये बहुत आसान था कि हम 301 को 299 से सिंपली मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन अलजेब्रा की हेल्प से इस अरिथमेटिक के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें अलजेब्रिक फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है. उसके लिए हमने इसको बायनॉमियल में कन्वर्ट किया, इसको भी बायनॉमियल में कन्वर्ट किया, और ये
फाइनली ये 300 प्लस 1 और 300 माइनस 1, इनको शेप ऐसी दी कि हम किसी न किसी अलजेब्रिक फॉर्मूला को अप्लाई कर सकें. अब ये a प्लस बी और a माइनस बी, a सेम है दोनों का 300, b सेम है 1. We can write down the formula and we can see that it is a plus b into a minus b, and definitely we will put it in the formula and it will become, या आपने फॉर्म को दोबारा लिखा. अब आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को कैसे लिखेंगे, ये a प्लस बी और a माइनस बी को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो a स्क्वायर इज 300 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विल बिकम 1 स्क्वायर. तो ये बना 90,000 माइनस 1, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 8999 ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा. Next is part D, the very same pattern. Now the question is 401 into 399. तो 401 को हम लिख सकते हैं 400 प्लस 1 और 399 को 400 माइनस 1 लिख सकते हैं. और बिल्कुल उसी पैटर्न पे हमारे पास ये a प्लस 1 और a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म आ गई. और अब आप इसको देखें, फॉर्मूला लिखा आपने और a की वैल्यू 400, b की वैल्यू 1, इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे. a प्लस बी है ये और ये है a माइनस बी. आइडेंटिफाई करेंगे आपके ये कौन सी फॉर्म्स है. आप उसके बाद आपको लिखना, इसको किसके इक्वल लिखना है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है आपके पास मौजूद है. आप इसको लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड मौजूद है, आपको लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट करना है. तो लेफ्ट हैंड साइड आप लिखेंगे 400 स्क्वायर माइनस 1 and it will be 160,000 minus 1 and it will be 159999. अगर आप वैसे भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल बी गेटिंग द सेम आंसर. सो इन क्वेश्चंस में हमने क्या लर्न किया कि हम अरिथमेटिक के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी अलजेब्रा की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं. सो दैट इज प्रूफ के अलजेब्रा हमें हर फील्ड में, अरिथमेटिक में और इसके अलावा भी बहुत सारे ज्योमेट्री के क्वेश्चंस जो आप पहले पिछले सेशन में भी आप लर्न कर चुके हैं, एरिया, पेरीमीटर, उनमें हेल्प करता है. योर होमवर्क, you have to write exercise 6A question 1 part D F G H I J K L M and question 2 parts B C D on neat copy. कुछ पार्ट्स मैंने अलजेब्रिक फॉर्मूला नंबर 2 के साथ लिंक करके करवाए हैं और कुछ अलजेब्रिक फॉर्मूला नंबर 3 के साथ. जो क्वेश्चन जो पार्ट जिस फॉर्मूला के साथ रिलेट करता था वहीं पर मैंने उसको करवाया है. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स जो हैं वो जिस भी अलजेब्रिक फॉर्मूला के साथ रिलेटेड थे वहीं पर मैंने करवाए हैं. प्रैक्टिस टू लर्न बेटर. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.